Okay. Okay. Yes, ma'am, you are Yes, audible. ma'am. So today we will study about the Bloom's taxonomy. Bloom's taxonomy is very important part for teaching learning process. As the मैम first, मैम एक चीज पूछ रही है, आज का शेड्यूल चेंज हुआ है क्या? हाँ, ये change हुआ। Lokendra ji, Okay. please don't disturb Okay. in between. Okay. If you have any Okay. question, talk Sorry. to me directly. Sorry, Please. sir. Sorry, sir. Okay. Today's topic is very enchanting topic and very essential for a teacher to understand that what are the essential requirements of a teaching learning process. Say for example, we are taking this process very easy, that we will we'll take the attendance, then we'll deliver the lecture. But in fact, this process is not so easy. And when we start the lecturing, we must have certain vision and mission in our mind, what I have to do and in what way I have to achieve these all. So these fundamental principles of teaching is being covered by the Bloom's taxonomy. So let me present my PPT presentation first, then we will go one by one. देखिए, okay. This is the introduction of Bloom. As I am saying that we are going to study the Bloom's taxonomy. So this is the introduction of Bloom in brief. Bloom was a Jewish American educational psychologist born on 21st February 1930 in Lansford, Pennsylvania, and died on 13 September 1999. What was his contribution? His contribution was classification of educational objectives and theory of mastery learning. So the word Bloom's taxonomy, I have given the introduction of Bloom, now the word taxonomy. Taxonomy is a word that is having two words in this single word, that is taxis and nomos. So combining two words, we get the one word that is taxonomy. Taxis means arrangement and nomos means science. So science of arrangements, a set of classification principles or structure and domain simply means category. When we categorize all the principles or a kind of essentials into different categories with the objective that each category has its own function, each category has its own kind of specific characteristics, it means it is taxonomy. Why we are saying it's Bloom's taxonomy? Because this categorization of taxonomy done by educationist Bloom, Benjamin Bloom, it was the full name, Benjamin Bloom. Now the question arises, why do we need this taxonomy? हमें इस taxonomy की क्यों आवश्यकता होती है?
Dear participants, we need this taxonomy because the teaching process is a complicated process. It's not so simple as we consider it sometime. So passing through one step, that is the first step of teaching, that is educational objectives. Then we start passing through this journey of this teaching and end toward the evaluation. सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है या मकसद है वो क्या है? सबसे पहले वी डिसाइड द उद्देश्य. हम सबसे पहले अपना शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित करते हैं कि हमको आज अपनी कक्षा में क्या करना है. So first we decide what we have to do in the classroom. This is known as objective. And objectives are of two types. One is specific objective, another is general objective. General objective वो objectives होते हैं that is concerned with your subject particularly, जो आपके विषय से संबंधित होते हैं, वो सामान्य उद्देश्य कहलाते हैं. Say for example, you are teacher of science. So what is the objective of teaching science in the classroom? The objective of teaching science in the classroom is to make the students sincere, punctual, as well as to develop the scientific temperament and scientific attitude and scientific interest, and finally to develop the scientific skills so that they become a scientist or some kind of innovative kind of personalities that may contribute something to the society. तो साइंस का जो विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य है वो हमको एक अच्छे विद्यार्थियों को एक अच्छे वैज्ञानिक बनाना है, जिसके अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड हो, ऑनेस्ट हो, पंक्चुअल हो, सिंसियर हो, हार्ड वर्किंग हो, और हम विषय के द्वारा ये सब बनाने का प्रयास भी करते हैं. तो ऑब्जेक्टिव्स जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो हमारे विषय से संबंधित होते हैं. जैसे विज्ञान विषय के अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको. इसी तरीके से होम साइंस के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, फिलोसफी के हैं, हिस्ट्री के हैं, एंड सो मेनी एंड सो फोर्थ. इसी तरीके से कई सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं उनके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार हमारे तालिबे इल्म, हमारे जो विद्यार्थी हैं, उनका व्यक्तित्व डेवलप होता है. जैसे आपने देखा होगा कि भाई अगर किसी फिलॉसफी के टॉपिक की जरूरत है तो फिलोसफर कोई तो बुलाया जाएगा जो फिलॉसफी का सब माहिर है, या जो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में फिलॉसफी पढ़ाता है. साइंस वाले को थोड़ी हम बुलाएंगे. तो हर आदमी अपने सब्जेक्ट का माहिरीन होता है, एक्सपर्ट होता है, विषय ज्ञाता होता है, विषय विशेषज्ञ होता है. तो उसी के अकॉर्डिंग उसमें वही उसकी एटीट्यूड होता है और वही उसके स्टाइल होता है, वही उसकी उसी तरीके की उसकी नॉलेज होती है, प्रॉब्लम को देखने का नजरिया भी उसका वही होता है. तो हर विषय के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं और उस विषय के अनुरूप उस विद्यार्थी में व्यक्तित्व का विकास होता है. तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जिनको हम दो कैटेगरी में बांट रहे हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हमारे टीचिंग लर्निंग का एक अभिन्न अंग होता है. अब दूसरा पार्ट क्या है? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव का मतलब है विशिष्ट उद्देश्य, जो उसका हिंदी रूपांतरण है विशिष्ट उद्देश्य. विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं वो चैप्टर से या लेसन से संबंधित होते हैं. दैट यू आर गोइंग टू टीच टुडे, जो भी आप पढ़ाने जा रहे हैं उस लेसन से संबंधित उद्देश्यों को हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं. जैसे हमने आपको एग्जाम्पल लिया कि हम विज्ञान में विद्यार्थियों को
कि कौन कौन से ट्रेट को डेवलप करते हैं, इसी तरीके से जो विशिष्ट उद्देश्य हैं वो समझ लीजिए, जैसे हमने आज मैग्नेटिज्म पढ़ा है, तो मैग्नेटिज्म चैप्टर के जरिए हम अपने स्टूडेंट्स को कौन सा नॉलेज दे रहे हैं, यानी हम उन्हें ये बता रहे हैं कि व्हाट इज मैग्नेटिज्म, हाउ मैग्नेटिज्म एक्ट्स, what are the poles of a magnet, where can we use this magnet, and what kind of other items that we use in daily life can be prepared with the help of magnetism. And these are only the specific objective that is related to our chapter magnetism. Similarly, if you are teaching electric current, तो उसके ऑब्जेक्टिव अलग बन जाएंगे। सॉरी मैम आपका स्लाइड मैम मूव नहीं कर रहा है। अभी ये जनरल बातें बता रही हूँ मैं जी आपको, मैम। इसलिए ये मूव नहीं कर रहा है। जब मैं आऊंगी अपने विषय पे तो आपको मूव करती जाऊंगी, ठीक है बेटा। आप कौन से सब्जेक्ट के हैं टीचर? जूलॉजी से हैं, जंतु विज्ञान जूलॉजी। हाँ जूलॉजी के हैं। ये देखिए जैसे ये जूलॉजी के टीचर हैं, क्या नाम है आपका? मैम डॉक्टर जितेंद्र कुमार। डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी, जितेंद्र जी जूलॉजी के टीचर हैं, इन्होंने बताया जूलॉजी के टीचर हैं। तो जूलॉजी है उसका जो सामान्य, अपना माइक तो बंद करिए, जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो जनरल ऑब्जेक्टिव्स आपकी जूलॉजी के वही होंगे जो साइंस के हैं, क्योंकि वो साइंस विषय है। लेकिन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बदल जाएंगे। क्यों बदल जाएंगे? क्योंकि हर रोज आप एक नया चैप्टर पढ़ाएंगे, तो आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हर रोज चेंज होते हैं, लेकिन जनरल ऑब्जेक्टिव हर रोज चेंज नहीं होते हैं, वो विषय से संबंधित सामान्य ही रहते हैं। ये मेरा मतलब है। अब देखिए, अब आप देखिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है वो classification system used to define and distinguish different levels of human cognition, that is thinking, learning, and understanding. Educators have typically used Bloom's taxonomy to inform or guide the development of assessment curriculum and instructional method such as questioning strategies. देखिए ये जो स्लाइड है ये आपको ये बता रही है कि हमारी जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है ये 3 तरीके के लेवल पे काम करती है, थिंकिंग, लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। थिंकिंग का मतलब क्या है कि द प्रोसेसेस दैट आर गोइंग ऑन इन योर माइंड। थिंकिंग मस्तिष्क से करते हैं, जहन से करते हैं। लर्निंग, ये लर्निंग जो होती है वो आपको आपके सेंस ऑर्गन्स जब इन्वॉल्व होते हैं, आप खुद उसमें पार्टिसिपेट करते हैं किसी प्रोसेस में, तब आपको लर्निंग होती है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि कोई बात समझ में तभी आती है जब उसका पूरा ज्ञान तो मेरे पास हो। अगर कोई प्रिंसिपल है या कोई थ्योरी है वो आपको, आपके पास उसका नॉलेज नहीं है, तो आप कैसे उसको अंडरस्टैंड करेंगे? यू कांट अंडरस्टैंड दिस नॉलेज with this understanding without knowledge. So sometimes it happens that we can't understand that what is Bloom's taxonomy, and Bloom's taxonomy provides a support or a platform to every teacher that how to prepare your lecture. आप अपना लेक्चर कैसे बनाएं? ये जो 3 टर्म लिखे, थिंकिंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, इनके रोल अपने अलग अलग होते हैं, इनका अलग अलग तरीके का पार्टिसिपेशन होता है। जैसे बॉडी जो है कभी नॉलेज रिसीव कर रही है तो हाँ थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है, हाथ पैर से कुछ कर रहे हैं हम, सेंस ऑर्गन्स हमारे काम कर रहे हैं। और अगर हम डीप थिंकिंग कर रहे हैं, बात को पूरी तरह से जुझारू हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो ब्लूम्स ने जो अपने ये जो ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ these objectives, first he categorized the human body into 3 parts.
और उसने बताया कि हमारी जो बॉडी है वो 3 हमारे मेजर ऑर्गन्स हैं जो बहुत एक्टिव हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ लर्निंग। कौन कौन से हैं वो? सबसे पहला ब्रेन, मस्तिष्क। हमारा मस्तिष्क सबसे पहले एक्टिव हो जाता है। कैसे एक्टिव हो जाता है? कि जैसे आपने कोई नॉलेज इम्पार्ट की, क्लासरूम में कोई नॉलेज आपने थ्रो की स्टूडेंट्स को, तो सबसे पहले वो ब्रेन ही तो उनका रिसीव कर रहा है। और उस जब वो रिसीव करते हैं तो ब्रेन में भी कई प्रोसेसेस होते हैं। एकदम से नहीं बच्चा समझ जाता कि मैं सर ने क्या पढ़ाया और मैं एकदम समझ गया, नहीं, वहां भी बहुत से कई प्रोसेसेस होते हैं। और उन प्रोसेसेस को समझने के बाद स्टूडेंट जो है वो नॉलेज के लिए यस के पाता, यस आई गॉट द पॉइंट। और नॉलेज जब पूरी तरह से उस ग्रैस्प कर लेता है तब वो क्या नेक्स्ट क्या होती है, वही चीज अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट हो जाती है कि यस अब बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो नॉलेज और के बाद अंडरस्टैंडिंग है, और अंडरस्टैंडिंग जब हो जाती है तो उसमें बच्चे का रुझान, स्टूडेंट का रुझान डेवलप हो जाता है। रुझान से मेरा मतलब है उसकी रुचि डेवलप हो जाती है और वो फिर सोचता है कि भी अच्छा है हम इसको बार बार पढ़ें, उससे रिलेटेड किताबें पढ़ें, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम अपनी मैडम से पूछें। तो ये क्या है? ये उसका हार्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज है जिसमें वो इंटरेस्ट ले रहा है। So what I want to say that knowledge and understanding are concerned with brain, but when the understanding process is completed, now the learner starts to take interest in learning process, and here the heart feelings involved, and the interest for that particular learning starts. So this kind of interest or the kind of emotions, you can say, these all says the students to learn more and more. So heart is the second part that involve the learner in the learning process wholeheartedly. ठीक है? अब जब उसकी बात समझ में आ गई, उसको शौक ज़ौक पैदा हो गया सीखने का, तो फिर फाइनली वो कलम पकड़ता है, कलम पकड़ के वो कुछ लिखता है, यानी नोट टेकिंग एक्टिविटी देता है, अपने अपने अल्फाजों में, अपने शब्दों में वो उसी नॉलेज को लिखने लगता है। अगर उसका कोई एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो उसकी नॉलेज से रिलेटेड है, तो ही राइट्स इट ऑन द पेपर, and when the teacher goes through the answer of it, he judge it that yes, now the knowledge is completed with full understanding. And if vice versa, it may be that not understanding, तब टीचर का क्या नजरिया होता है, क्या इवैल्यूएशन होता है कि भाई नो, now there is still room for improvement because the things has not been completed in the way that it should be. ठीक है? तो ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, इसमें तीन ह्यूमन बॉडी के 3 पार्ट्स ने भाग लिया। कौन कौन से ने? ब्रेन ने, हार्ट ने और हैंड ने। ब्रेन को हम हेड कहेंगे, हार्ट को हार्ट ही कहेंगे, और जो आपका हैंड है उसको हैंड कहेंगे। इस तरह से ये 3H लर्निंग कहलाती है। 3H लर्निंग, हेड, हार्ट एंड हैंड। Head is responsible to receive the knowledge, to analyze the knowledge until and unless the knowledge is completely understood by the learner. Now the interest starts, and the wholeheartedly the student is involved in the teaching learning process, and finally he is able to give the correct answer of this particular learning on the paper or maybe verbally sometime.
or maybe in the form of any diagram, or maybe in the form of any labeling, and maybe any kind of picture. So if he is able to understand and he is totally involved, finally he can explain it with own words also. So skill comes under the head, hand, H-A-N-D, hand. And your interest, your emotion comes under the heart, and your thinking process comes under the head. ठीक है, ये बात इतनी समझ में आई आपके? अब मैं आगे बढ़ती हूँ. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. See this. चलिए ठीक है, देखिए. Yes, ma'am. ठीक है, ये टेक्सोनॉमी 1956 में दी थी, और इन्हीं के स्टूडेंट एंडरसन ने इस टेक्सोनॉमी को फिर इम्प्रूव किया था और थोड़ा सा बदलाव किया है उसमें, और लॉरेन एंडरसन ने. तो दैट इज नोन एज रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी. ओरिजिनल टेक्सोनॉमी 1956 में आई थी, लेकिन रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी 2001 में आई थी. देखिए 1956 में ये मैं आपको बता चुकी कि फ्रेमवर्क हैज बीन अप्लाइड बाय जनरेशन ऑफ K-12 टीचर्स. ये अमेरिकन पैटर्न है. इन कॉलेज इंस्ट्रक्शंस इन देयर टीचिंग द सेम, दैट इज ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी was used in the classroom in American schools. 3 डोमेन्स, कॉग्निटिव डोमेन, मेंटल स्किल्स इसमें आती हैं, नॉलेज इसमें आती है, अफेक्टिव डोमेन इसमें ग्रोथ इन फीलिंग्स और इमोशनल एरियाज, एटीट्यूड और सेल्फ आ जाता है. साइकोमोटर डोमेन, मैनुअल और फिजिकल स्किल्स आ जाती हैं. इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर्स, trainers and educators often refer to these 3 categories as KSA. K का मतलब नॉलेज है, स्किल्स का मतलब स्किल्स जो हैंड स्किल्स आपके होते हैं, और A का मतलब एबिलिटीज है, KSA. ठीक है, नॉलेज किससे रिलेटेड होती है, कौन से डोमेन से, आप बताइएगा आप लोग. हेड से. तो इसको कौन सा डोमेन क्या है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में? मैम कॉग्निटिव डोमेन. यस, बस वेरी गुड. स्किल को कौन सा डोमेन का है? साइकोमोटर डोमेन. साइकोमोटर, एग्जैक्टली. एबिलिटीज अफेक्टिव डोमेन. ठीक है, चलिए साहब, इसका मतलब आपको समझ में बात आई कि ऐसे नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज. ओके, अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी. ऑब्जेक्टिव्स आर, जो सबसे पहला टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो ऑब्जेक्टिव होता है. तो ऑब्जेक्टिव को बनाने के लिए हमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की जरूरत पड़ती है, एंड सो दैट टीचर्स एंड स्टूडेंट्स alike understand the purpose of that interchange. Organizing objectives helps to clarify objectives for themselves and for students. Having an organized set of objectives helps teachers to plan and deliver appropriate instructions. Organized objectives also helps teachers to design valid assessment, tasks and strategies, and ensure that instruction and assessment are aligned with the objectives. Instruction and assessment are aligned with the objectives. इसको समझिए. इसका मतलब क्या है कि जो हम आप बात बताती हैं क्लास में वो इंस्ट्रक्शन है, और उसको जब आप देखती हैं कि हमारे लर्नर्स ने कितना सीखा तो वो असेसमेंट है. तो ऑब्जेक्टिव्स और आपके इवैल्यूएशन ये दोनों अलाइंड होते हैं. अलाइंड का मतलब दोनों आपस में लिंक्ड होते हैं. अगर ऑब्जेक्टिव अच्छे बने हैं तो बच्चे की इवैल्यूएशन अच्छा आएगा, उसका एकेडमिक अचीवमेंट भी अच्छा आएगा, उसको अच्छे मार्क्स वो अचीव करेगा. और अगर आपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं किए हैं, वो स्पेसिफाई नहीं किए हैं, तो वो स्टूडेंट आखिरी इवैल्यूएशन में जाके अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन या अच्छा परफॉर्मेंस
नहीं दे पाएगा। So when the objectives are clear and objectives are framed as per the need of the lesson, then the assessment will be successful. And you can say that, yes, I am really a wonderful teacher and I am able to do my work with my own capacity, and I can say my eyes, I am successful in the classroom. अब एक एक डोमेन को हम पढ़ते चलते हैं, ठीक है? आप समझते चलिए, फिर हम आपसे ऑब्जेक्टिव बनवाएंगे आखिरी में। सब लोग, सब पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू पे अटेंशन, एंड एट द एंड आई विल इंस्ट्रक्ट यू, आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्रिपेयर फ्यू ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, कॉग्निटिव डोमेन है। कॉग्निटिव डोमेन जो मैंने आपको बताया, हेड का हिस्सा होता है, ब्रेन का हिस्सा होता है। The cognitive domain involves knowledge and the development of intellectual skills. This includes the recall or recognition of specific facts, procedural patterns, and concepts that serve in the development of intellectual abilities and skills. There are 6 major categories of cognitive processes, starting from the simplest to the most complex. कौन कौन सी है अभी देखिए आप। It helps a teacher to keep him reminded that are indeed many and important high mental processes beyond the acquisition of knowledge on the part of his students. देखिए, अब देखिए, ये चीज आपकी समझने की है। नॉलेज में सबसे पहले नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक्स। तो सबसे पहले कि कोई भी आप चैप्टर पढ़ाएं तो आप उसकी टर्मिनोलॉजी बताइए। यानी टर्मिनोलॉजी, जैसे इन्होंने अभी बताया था कि हम जूलॉजी के टीचर हैं, तो जूलॉजी में कोई चैप्टर अगर ये एनिमल किंगडम भी पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले उसमें जो टर्म्स आप यूज कर रहे हैं एनिमल किंगडम में, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, तो आप ये बता दीजिए कि इससे हमारी क्या मुराद है। व्हाट डज आई नो अबाउट दिस पर्टिकुलर वर्ड। इस जो वर्ड है उससे क्या मुराद है। से फॉर एग्जाम्पल फाइलम लिखते हैं आप, क्लास लिखते हैं आप, ऑर्डर लिखते हैं आप, तो क्यों लिखते हैं, इसी ऑर्डर में क्यों लिखते हैं, इनसे इन अल्फाजों का क्या मानी है, और वो आपके एनिमल किंगडम में कहाँ तक काम आते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय दीज पर्टिकुलर टर्म्स, दैट यू शुड नो वेरी वेल। उसके बाद क्या है, नॉलेज ऑफ कन्वेंशंस, नॉलेज ऑफ ट्रेंड्स एंड सीक्वेंसेस। तो सबसे पहले टर्म बताएंगे, उसके बाद हम फैक्ट्स बताएंगे। फैक्ट्स का मतलब क्या होता है कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ। तो विषय से संबंधित, ये जूलॉजी में ये नहीं पढ़ाया जाएगा, ये तो आपको पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ाएंगे, सोशल साइंस में आप पढ़ाएंगे। लेकिन जो विषय से संबंधित फैक्ट्स हैं कि एनिमल किंगडम किसने दिया, एनिमल किंगडम किस ईयर में दिया, ये फैक्ट्स हैं, ये बदल थोड़ी जाएंगे। ये नहीं है कि कोई कह रहा है कि 1924 में दिया, कोई कह रहा है कि 1824 में दिया, ऐसा नहीं है। जो फैक्ट्स हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड दे रिमेन द सेम। तो जो फैक्ट्स हैं सबसे पहले हम उनको बताते हैं। उसके बाद नॉलेज ऑफ वेज एंड मीन्स ऑफ डीलिंग विद स्पेसिफिक्स। स्पेसिफिक्स का मतलब है कि उसके अंदर जो जो टर्म्स आ रही हैं उन सब के अपने अपने अलग मीनिंग है और उनके अपने अपने अलग रोल्स हैं, उनके अपने अपने अलग फंक्शंस हैं। तो ये जो नॉलेज है और ये जो स्पेसिफिक जो आपने बताया कि जो टर्मिनोलॉजी है उसको भी आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो ये तरीका होता है सही तरह से लेक्चर देने का या टीचिंग को आगे बढ़ाने का, जहाँ पे हम टर्म से शुरू करते हैं बात, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देते हैं और जो टर्म्स बीच बीच में आ रहे हैं हम उनके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके स्पेसिफिक रोल, उनके स्पेसिफिक फंक्शंस भी बताते हैं। नॉलेज ऑफ कन्वेंशंस, नॉलेज ऑफ ट्रेंड्स एंड सीक्वेंसेस। अब देखिए, नॉलेज ऑफ क्लासिफिकेशन एंड कैटेगरीज, नॉलेज ऑफ क्राइटेरिया, नॉलेज ऑफ मेथोडोलॉजी, यानी इतने तरीके का ज्ञान
आप अपने विषय के अनुसार अपने स्टूडेंट्स को देंगे। किस किस का ज्ञान देंगे, किस क्राइटेरिया पे आपने प्रिंसिपल बनाया, क्या मेथोडोलॉजी है, क्या उसका रोल है, क्या उसका फंक्शन है, क्या उसकी एप्लीकेशन है। आप अपने एक ही चैप्टर से इतनी चीजों को बाहर निकालेंगे, तब जाके आप क्लास में डिलीवर करेंगे लेक्चर। तो यानी जब सारी बातें आपको स्पष्ट हो जाएंगी, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपका काम क्लासरूम में कितना आसान हो। तो दिस इज अ काइंड ऑफ साइंस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस इन फैक्ट, जो हमको ये बता रहा है कि हम कैसे अपनी टीचिंग प्रोसेस को शुरू करें। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट प्रिपेयर फॉर एनी टॉपिक and we are going to the classroom and only delivering the lecture and completing it, asking sometime questions, sometime not asking question, and coming outside when the period is over. So this practices should be improved, modified, and I must say that it should not be implemented in the classroom even. What is needed? The need is to understand what are your objectives of a particular chapter that you are going to study today, and what knowledge, facts, terminologies, theories, principles, what you are going to teach today, it should be clarified on a one to last point, and you must be very clear that I have to explain these terms in the classroom with suitable examples, with suitable teaching charts, with suitable kind of demonstration and other devices and other kind of supportive material that is needed there. So you must learn this art of teaching in the classroom. अब देखिए, ये कॉम्प्रिहेंशन, नॉलेज से रिलेटेड बात मैंने आपको बता दी। अब कॉम्प्रिहेंशन है। कॉम्प्रिहेंशन जो होता है वो अंडरस्टैंडिंग को कहते हैं। कॉम्प्रिहेंशन इज अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग अगर आपके तलबा में है, आपके स्टूडेंट में है, तो इसका मतलब वो ट्रांसलेशन यानी उस नॉलेज को ट्रांसलेट कर लेगा इन हर ओरिजिनल वर्ड्स। इंटरप्रिटेशन मीन्स कि he will be able to interpret the phenomena, natural phenomena, processes, वो उसको अपने शब्दों में उसकी व्याख्या कर लेगा। एक्सट्रापोलेशन, other kind of extra interpretation is needed or other kind of clarification is needed, he is able to do the same. Application, it means he can utilize this particular knowledge to the outer environment also. Analysis means that the particular knowledge he can break it into small pieces. Say for example, there are a theory, there are a principle, so he can divide this principle or theory into small सेगमेंट्स ऑफ नॉलेज। जैसे आपने वो पढ़ा है ना, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पढ़ते हैं फिजिक्स में, उसमें क्या है कि अगर हम एक लोहे की बॉल को और एक लकड़ी की बॉल को हम डिप कर दें किसी पानी में, तो लोहे की बॉल जो आयरन बॉल है वो तो बैठ जाती है, सेटल डाउन ऑन द बॉटम, बट द वुड फ्लोट्स द अपर लेयर ऑफ द वाटर। तो ऐसे क्यों होता है? अब इन दोनों को मिला के एक आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बना, जिसमें उन्होंने डेंसिटी की बात कही। ठीक है, कि जिनकी डेंसिटी, जिन आइटम्स की डेंसिटी ज्यादा है पानी से, वो सेटल डाउन हो जाती है, और जिनकी डेंसिटी कम है वो फ्लोट करती है। सो दिस प्रिंसिपल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, one for those items that having less density, another is for those items that having high density in comparison to the water, with respect to water. ठीक है, तो उन्होंने दो में बांट दिया और दो में बांट के फिर उसको ज्वाइन कर दिया। तो ये अगर हम किसी भी नॉलेज सेगमेंट को डिवाइड कर करके पढ़ रहे हैं, वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस का हो,
तो वो एनालिसिस के, और उस एनालिसिस के थ्रू हम उस फंडामेंटल नॉलेज को समझते हैं। सो एनालिसिस में जो पहला पॉइंट है वो एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स आता है। उसके बाद एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप्स। एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप्स का मतलब क्या है कि दो वेरिएबल हैं जिनकी हमने रिलेशनशिप बता रखी है, तो वो इंटरप्रेट करेगा हमारा लर्नर कि ये रिलेशनशिप क्यों है, व्हाट इज द कॉज ऑफ बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स एंड व्हाई दिस रिलेशनशिप कैन बी एग्जिस्ट। जैसे आपने अभी ज़ूलॉजी की बात करी, तो इसमें सिम्बायोसिस होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप पे जो कीड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो अपना प्लांट से रिलेशनशिप कर लेते हैं और उनका जूस है या उनका जो ग्रीन सेगमेंट है वो खाते हैं और वो अपना नाइट्रोजन जो भी बनाते हैं वो पौधे को देते हैं, तो एक सिम्बायोटिक साइकिल बन जाता है उनका। तो ये जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स में, ये क्यों है, क्या इसका रीजन है, उसको हमारा लर्नर एनालाइज करके बताता है इस रिलेशनशिप को। और एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल्स, ये मैंने आपको आर्किमिडीज का प्रिंसिपल दे दिया इसमें कि जो भी प्रिंसिपल है उसका एनालिसिस वो कर सकता है। सिंथेसिस का मतलब है जोड़ना, ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग ऑल टुगेदर। एनालिसिस का मतलब है ब्रेकिंग एंड ब्रेकिंग द सेगमेंट्स ऑफ नॉलेज। सिंथेसिस का मतलब है ज्वाइनिंग द सेगमेंट्स ऑफ नॉलेज। एनालिसिस में हम प्रिंसिपल्स और थ्योरीज को तोड़ तोड़ के पढ़ाते हैं, जबकि सिंथेसिस में हम जो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स है नॉलेज के, उनको जोड़ देते हैं, जोड़ के हम उनकी रिलेशनशिप बताते हैं और एक बेसिक प्रिंसिपल जिसकी वजह से वो आपस में इंटरलिंक्ड है, हम उसको बताते हैं। तो उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम सिंथेसिस कह रहे हैं। प्रोडक्शन ऑफ यूनिक कम्युनिकेशन, प्रोडक्शन ऑफ अ प्लान और अ प्रपोज्ड सेट ऑफ ऑपरेशंस, derivation of a set of abstract relations, ये इवेल्यूशन है। जजमेंट इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एविडेंस, जजमेंट इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल क्राइटेरिया। जो एग्जाम होता है, इंटरनल एविडेंस क्या है, आप किस चीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बच्चों की राइटिंग पे कर रहे हैं, नॉलेज पे कर रहे हैं और उनके क्लासरूम बिहेवियर पे कर रहे हैं। और एक्सटर्नल क्राइटेरिया जब आपका जो एक्सटर्नल एग्जाम होता है, इसके बेसिस पर हम इवेल्युएट करते हैं। ट्राई टू इलैबोरेट द टैक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन गिवन बाय ब्लूम फॉर इट्स क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग इन द एबव। इसको, ये आपका क्या है, ये असाइनमेंट है। इट्स अ काइंड ऑफ असाइनमेंट दैट यू कैन डू व्हेन यू आर फ्री, बट वन एक्सरसाइज आई विल आल्सो गिव यू आफ्टर completing this lecture, but this is your a kind of assignment that you try to understand when you are free at home. अब देखिए, इन्होंने फिर जो नॉलेज है वो अभी काफी हम बता चुके हैं इसके बारे में, लेकिन फिर भी ये स्लाइड आपको ये बता रही है कि नॉलेज कौन कौन सी चीजों की दी जाती है। स्पेसिफिक फैक्ट्स की दी जाती है, टर्मिनोलॉजी की दी जाती है, मेथड्स की दी जाती है, प्रोसेसेस की दी जाती है, प्रिंसिपल्स की दी जाती है, थ्योरीज एंड स्ट्रक्चर्स। The knowledge objectives mainly call for the recall and recognition level of one's memory. ये जो हमारा नॉलेज है, जो हम कॉग्निटिव डोमेन की बात कर रहे हैं, उसमें रिकॉल करना, रिकॉग्नाइज करना, एक्सप्लेन करना, डिस्क्राइब करना, ये सारे कंपोनेंट्स हमारे कॉग्निटिव डोमेन यानी नॉलेज से रिलेटेड होते हैं। And therefore their evaluation is primarily made through a simple recall or multiple choice type questions. अब देखिए कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन क्या है? अंडरस्टैंडिंग। इसको हम अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा हाई लेवल की लर्निंग होती है। नॉलेज रिसीव कर लेना, रिसीव करके उसको याद कर लो, याद करके उसको डिस्क्राइब करने लगे, ये लोअर लेवल की लर्निंग कहलाती है। लेकिन अगर उस नॉलेज को एक्सेप्ट करके
अपने ही अल्फाजों में जब आप बयान करने लग जाएं तो वो अंडरस्टैंडिंग है. सो अंडरस्टैंडिंग इज क्वाइट हायर लेवल ऑफ लर्निंग in comparison to the knowledge level. Okay, so comprehension is based upon knowledge. If there is no knowledge, there will be no comprehension. On the ladder of the acquisition of cognitive abilities, its level is little higher than knowledge. It means the basic understanding of the facts, ideas, methods, processes, principles, or theories. As a result, what is communicated to a learner, he may translate or summarize the communicated knowledge in his own words. He may interpret, that is, cite examples, discriminate, classify, verify, generalize and extrapolate. यानी अगर नॉलेज को ढंग से समझ लिया है तो आप दो चीजों में अंतर बता सकेंगे, आप उसका क्लासिफिकेशन बता सकेंगे और जनरलाइज्ड वेरीफाइड नॉलेज, जैसे वेरीफाइड नॉलेज है उसकी आप एग्जांपल्स दे सकेंगे. एंड यू कैन जनरलाइज द नॉलेज लेवल एंड एक्सट्रापोलेट एंड इंटरप्रेट. ये सब हायर लेवल की लर्निंग होती है. ये वही कर सकता है भाई जिसको नॉलेज का पूरी तरह से कहना चाहिए ग्रैस्प कर लिया हो, एसिमुलेट कर लिया हो, अदर से एसिमुलेट कर लिया हो. जैसे आप रिसर्च करते हैं ना, तो रिसर्च में पहला चैप्टर है, इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, बहुत आसान होता है. वो तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाना है, उसमें तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क. दूसरा जो है वो स्टडीज से रिलेटेड हो गया, तीसरे में मेथोडोलॉजी हो गई. लेकिन चौथा चैप्टर जो होता है जहाँ पे जाके हम डेटा को एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं एज पर द नीड ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है. यानी मुश्किल से मतलब है कि वही कर सकता है जिसको बात समझ में आ रही. तो ये जो चौथे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग है वो वही करेगा जो समझ लेगा कि हाँ हमारा इस ऑब्जेक्टिव में ये पूछा गया था और हमें अब इसको इस फॉर्म में लिखना है. और वाइसी वर्सा, यानी जिसके नहीं समझ में आ रहा है वो क्या करेगा, वो उसको बहुत ही एम्बिगुअस फॉर्म में लिखेगा, कहीं से पूछेगा, थीसिस किसी की दूसरे की देखेगा, तब जाके वो लिख पाएंगे. लिखा भी सही कि गलत ये भी हम नहीं उसका अंदाजा कर सकते. तो हमारा कहने का मतलब ये है कि नॉलेज अगर है और विदाउट अंडरस्टैंडिंग है तो वो वर्थलेस, उसकी कोई वैल्यू नहीं है. लेकिन अगर नॉलेज विद अंडरस्टैंडिंग है, रियली वंडरफुल, एंड नाउ द लर्नर इज सक्सेसफुल इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. अब आइए सब एप्लीकेशन पे. अब देखिए एप्लीकेशन जैसा कि नाम ये बता रहा है, इसका क्या मतलब है कि हम नॉलेज को अप्लाई करें. ठीक है, एप्लीकेशन का कोई एग्जाम्पल बताइए आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कि आपके स्टूडेंट्स उस नॉलेज को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बताइए. वोटिंग बिहेवियर. वोटिंग, अच्छा वोटिंग बिहेवियर. अच्छा अच्छा, क्या नाम आपका? डॉक्टर स्नेहलता. स्नेहलता कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं आप? पॉलिटिकल साइंस. पॉलिटिकल साइंस. पॉलिटिकल साइंस. तो इन्होंने कहा, आपने स्नेहलता मैडम ने कहा कि हम अगर बच्चे को बताएंगे कि भाई डेमोक्रेटिक सेटअप क्या होता है, कैसे वोट करते हैं, तो उसको वो अप्लाई कर लेगा जाके. बहुत अच्छा एग्जाम्पल स्नेहलता जी. तो ये जो पॉलिटिकल साइंस है ये इसका एप्लीकेशन एस्पेक्ट है. इसी तरीके से साइंस में देखिए, अगर आपके घर का कोई ट्यूबलाइट फ्यूज हो गई या कोई बटन काम नहीं कर रहा है, बल्ब आपका फ्यूज हो रहा है, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर अगर आपको पता है कि सर्किट कैसे क्लोज हो जाता है, सर्किट कैसे ओपन हो जाता है, तो आप एटलीस्ट उसको अपनी पढ़ी हुई नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है ना. कभी कभी आपने देखा होगा जो नुमाइश में टॉयज बच्चों के मिलते हैं, टॉयज भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होते हैं. देखिए ऊपर चला गया, ये बॉल नीचे आ गई, तो उसके भी रीजंस होते हैं. तो ये अगर बच्चे को नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, तो वो उसको वहां अप्लाई कर सकता है.
और भी आपने देखा होगा जो हमारे छोटे छोटे किड्स हैं, उन्होंने एरोप्लेन कागज का बनाया, उसमें हवा भरी और छोड़ दिया आसमान। बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। तो उसके पीछे भी तो कोई मैम, बेसिक some जी application of Newton's law. Some application of Newton's law. न्यूटन फ्लो ऑफ व्हाट? Newton's law in physics, मैडम। एग्जैक्टली जी एग्जैक्टली। आपका क्या नाम है? मैम, डॉक्टर अमरदीप फ्रॉम धनौरी पीजी कॉलेज, धनौरी, हरिद्वार। अमरदीप जी ने भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि न्यूटन्स लॉ क्या कहता है। पहला लॉ तो कहता है कि हर क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है, एवरी एक्शन हैज इट्स ओन रिएक्शन। ठीक है ना? यस तो मैम। ये भी हम कभी कभी मजाक में भी, सोशल सेटिंग्स में भी कहते हैं कि भाई आपने कहा तो उसने जवाब दे दिया, तो हर एक्शन के प्रति मैम, रिएक्शन। इट्स न्यूटन्स थर्ड लॉ। अच्छा अच्छा, फर्स्ट इट्स लॉ क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ। फर्स्ट फर्स्ट क्या लॉ है? मैम ये है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं कर रहे हो। कोई एग्जाम्पल या बताइए एक आप इसका। मैम, जैसे कोई भी घर में कोई भी सामान रखा है, टेबल चेयर्स, ये रेस्ट में है, तब तक रेस्ट में रहेंगी तब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो। या कोई ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही चलती रहेगी जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो। वेरी गुड, बहुत अच्छा इट्स बताया। इट्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ। देखिए अब इसका एप्लीकेशन बताइए, इसका क्या एप्लीकेशन होगा इस नॉलेज का? मैम बाइसिकल हो सकता है। यस बाइसिकल हो सकता है मैम। अपनी यस। और सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं मैम, जितने भी सोलर सिस्टम में जितने भी बॉडी, जी और बताइए। सोलर सिस्टम में जितने भी बाइसिकल हो सकता है और बॉडी है मैम, सोलर सिस्टम में हमारे जितने भी बॉडी है मैम, सभी वो एक यूनिफॉर्म जी 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 मोशन से सभी। अब देखिए आप इसको, जी आप बताइए। हाँ, वो कर रही है यूनिफॉर्म मैम। यूनिफॉर्म मोशन बोलिए बोलिए, जी मोशन से बताइए। क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, घूम रही है अराउंड अच्छा, अनदर्स बॉडी। तो ये बता जी अमरदीप साहब, आप इसको कैसे एक्सप्लेन कर सके? बताइए आप कैसे एक्सप्लेन कर सके इसको। किसको मैम? जब आप ये जो आपका आपने फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन और उसके एग्जाम्पल भी बताए, तो ये आपको जो एक्सप्लेन कर सके आप, उसकी क्या कारण था, कैसे एक्सप्लेन कर सके? अंडरस्टैंडिंग मैम। हाँ, आपको उस लॉ की, जो आप न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बता रहे हैं, उसकी आपको नॉलेज भी है और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी है, तभी आप उसकी एप्लीकेशन बता पा रहे हैं। तो एप्लीकेशन जो होता है वो थर्ड लेवल ऑफ लर्निंग होती है। फर्स्ट लेवल नॉलेज है, सेकेंड लेवल अंडरस्टैंडिंग है और थर्ड लेवल एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन जब होता है तो बच्चे के हाथ में स्किल्स आ जाते हैं, तब वो उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग विद इमोशंस, हार्ट एंड हैंड, जब ये तीनों चीजें आपकी कंप्लीट हो गई तो आपका एक लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट माना जाता है। और जब लर्निंग प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया, इट मींस यू आर द मास्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर लर्निंग। तो हमारे जो ब्लूम्स हैं, जो ब्लूम की टेक्सोनॉमी है, उसको हम कहीं कहीं पे मास्टरी लर्निंग भी कहते हैं कि भाई मास्टरी लर्निंग के पीछे क्या कॉजेज हैं। तो वी एक्सप्लेन ऑल द प्रोसेस ऑफ दिस मास्टरी लर्निंग विद द हेल्प ऑफ द ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ठीक है, बात समझे आप? यस मैम। आप बात समझ में आई? ठीक है। अब इसी तरह से यूनिट न्यूटन्स लॉ बताइए। जूलॉजी में मैम हम मैम अगर सेकंड लॉ। हमें जी जूलॉजी में अगर मैं मैम से- अगर हमें किसी एनिमल्स के बारे में पता इंफॉर्मेशन है तो उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं डिफरेंट एनिमल्स को, जी जी। डिफरेंट अपना क्लासेस नाम में, सेकंड लॉ। फीचर्स के बेस पर। नाम डॉक्टर बता जितेंद्र के कुमार आगे बढ़िए बेटा। मैम, डॉक्टर जितेंद्र कुमार फ्रॉम MGPG कॉलेज गोरखपुर। अच्छा, डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी बताइए। मैम अगर स्टूडेंट को अगर किसी एनिमल्स की फीचर्स के बारे में नॉलेज है तो उन फीचर्स का यूज करके एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकता है डिफरेंट क्लासेस में,
हाँ, यस यस यस, ठीक है, Yes, ma'am. क्लासीफाई कर सकता है। और वही देखिए, जब वो क्लासीफाई कर सकता है और किसी को देखता है, किसी एनिमल को कहीं पे, तो उसके जहन में आ भी जाता है कि ये फलाने फाइलम का Yes, ma'am. Yes, एनिमल ma'am. है। तो Yes, इस ma'am. तरीके से ये तभी संभव है जब हमारा ज्ञान पूरी तरह से है और में अंडरस्टैंडिंग हो गई है, ठीक है। Yes, ma'am. तो एप्लीकेशन जो होता है वो हायर ऑर्डर लर्निंग में आता है, जब बच्चे को पूरी ज्ञान और समझ पूरा विकसित हो जाता है, तब वो अप्लाई करता है और एप्लीकेशन में उसकी स्किल्स काम आ जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़े, थर्ड पे पढ़े, यूनिट थर्ड क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ थर्ड लॉ क्या है जो मैंने थर्ड बताया। लॉ जो है ना, हाँ, जो एक्शन और रिएक्शन का लॉ है, अगर हम किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगा रहे हैं तो वो अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स, जिस पर हम फोर्स लगा रहे हैं उतना ही फोर्स रिपल कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट, जैसे क्रिकेट की बॉल होती है, तो जब हम बॉल को फेंकते हैं तो बैट से जो हिट करते हैं, तो क्रिकेट की बॉल जब एक्शन करती है तो बैट से रिएक्शन होता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और कोई भी अपने विषय बताए, ये तो साइंस विषय का था। मैम जैसे हम लोग एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ाते हैं, जोलॉजी से हूँ मैं, तो एनवायरमेंटल अवेयरनेस आती है बच्चों में, जिससे वो जागरूक होते हैं जो पोल्यूशन हो रहा है, जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसके प्रति, तो वो एक अच्छे सिटीजन बनते हैं इस वजह से, क्योंकि उनको अवेयरनेस होती है, उनको नॉलेज होती है उस सब्जेक्ट की। जिसमें प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में फिर हमें बताते हैं तो वो कम से कम यूज करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं कि वो डेली लाइफ में प्लास्टिक का कम यूज करें। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा आपने बताया। From the fundamental right and fundamental duty, the student become a good citizen. एग्जैक्टली, सब बहुत बढ़िया। देखिए एनवायरमेंटल साइंस का भी आपने एग्जाम्पल दिया, फिजिक्स का भी आपने दिया, ह्यूमन राइट्स का भी आपने दिया, तो आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि हम कैसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को अप्लाई करते हैं। मैम एक साइकोलॉजी का एग्जांपल बताएं। साइकोलॉजी का देख लेते हैं, चलिए। मैम एक लर्निंग की थ्योरी है, लर्निंग की एक थ्योरी है स्किनर की, वो ये बताते हैं कि जो लर्निंग होती है वो रिइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट के द्वारा होती है, मतलब पुरस्कार अथवा दंड के द्वारा। तो उसका भी एप्लीकेशन डेली हम देखते हैं अपनी क्लास में या घर में बच्चों को सिखाते पढ़ाते समय। बहुत सही, बहुत सही। कंडीशनिंग, जी मैम, नहीं मैम, कंडीशनिंग अलग है। ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, उससे भी हम लर्निंग करते हैं, तो ये भी एप्लीकेशन है उसके लर्निंग थ्योरी। बहुत अच्छा एग्जांपल आपने दिया। मैं हाँ, हिंदी के वर्ड बताना चाहूंगी। मैं हिंदी हिंदी वाले बताइए। जी मैम, जैसे व्याकरण के कोई भी टॉपिक को आप ले लीजिए, बच्चा जब व्याकरण सीखता है, पहले समझ नहीं होती, जब उसे समझ आ जाती है तो हर चीज को अप्लाई करना सीख लेता है। जैसे शब्द निर्माण है, कलम लकम उन्हीं वर्ड से बना हुआ है, पर उसका जब शब्द समझ में आ जाता है कि कोई सार्थक ध्वनि समूह ही शब्द कहलाता है, तो बच्चा हर सार्थक ध्वनि समूह को सेट करना सीख लेता है। इसी तरह से संधि है, समास है, व्याकरण, अलंकार है, ये सारी चीजें बच्चा जब समझ लेता है तो उसको अप्लाई करना सीख जाता है। बहुत अच्छा आपने बताया कि ये जो भी हम बच्चे का, जी बताइए, बोलिए, नाम भी बताया। मैम जी, मैम मयंक त्रिवेदी, बुंदेलखंड महाविद्यालय झांसी से। मैम जैसे इस ट्रेनिंग में जो हम लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसकी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और इस सीखने के बाद, इसको समझने के बाद जब हम क्लासेस में दोबारा जाएंगे तो इस ज्ञान का हम प्रयोग करेंगे और इस ज्ञान से हम बच्चों को लाभान्वित करेंगे। जैसे मैं टीचर एजुकेशन से हूं, तो मैं ये जो यहाँ पर ट्रेनिंग में कर रहा हूँ, इन सब चीजों को सीख करके अपने विद्यार्थियों में इसको अप्लाई करूंगा, और जो हमारे टीचर एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, बीएड के स्टूडेंट हैं, उन पर भी हम, उनको भी ये चीज समझाएंगे कि आप अपने बच्चों पे भी कैसे अप्लाई करेंगे। तो जो ये हमारा ज्ञान यहाँ पर हम अर्जित कर रहे हैं और जो हमारी समझ हो रही, उस समझ को हम क्लासरूम तक ले जाएंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करते हुए। मैम वेरी गुड, वेरी गुड। Include the COPO and mapping in the question answer and just reforming the our syllabus.
गुड आफ्टरनून मैम। जी जी मैम नीरावत, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज श्रावस्ती। मैम मैं कॉमर्स की प्रोफेसर हूँ और कॉमर्स में हमारे मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड ही है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, बिजनेस कम्युनिकेशन हो, जीएसटी हो, मार्केट सब हो, कुछ ई बहुत सही। कॉमर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो हमारे सारे सब्जेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड ही होते हैं। हम बच्चे को सिखाते हैं, स्टेप्स बताते हैं कैसे क्या करना है, उनको हर एक चीज़ समझाते हैं, फिर वो खुद से करते हैं। लाइक इनकम टैक्स फाइल करना या कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर पे आप कैसे बैलेंस शीट बनाते हैं, हाउ टू कम्युनिकेट प्रॉपरली, बिजनेस Yes, कम्युनिकेशन, yes. So फाइनेंशियल so टू डू so शेयर। so really wonderful example you are giving here in commerce. So the knowledge, understanding and application, these aspects you all have covered, and it is really wonderful that you all know that what is application of your subject. Okay, so next analysis जैसे मैंने अभी आपको बताया था, आप भी अपनी जहां भी आपको जरूरत पड़ रही है इस स्किल की कि आप एनालाइज करिए। आपको अगर जरूरत पड़ रही है कि भाई आप अपने किसी प्रिंसिपल्स ऑफ नॉलेज की या किसी फैक्ट्स का नहीं एनालिसिस करते हैं, या किसी और से फॉर एग्जांपल थ्योरीज है या कोई सेगमेंट ऑफ नॉलेज है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बात ही नहीं बच्चे समझ पा रहे हैं, स्टूडेंट्स को नहीं समझ आ रहा है, जहाँ समझ नहीं आएगी वहां वो रोट लर्निंग करेंगे, और जब वो रोट लर्निंग करेंगे तो वो हमारी नॉलेज जो है वो उसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, उसका एप्लीकेशन नहीं हो पाएगा। तो ऐसी कोशिश करिए कि आपके लेक्चर में जगह जगह पर जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स आ गए हैं या कोई कॉम्प्लिकेटेड ऐसा नॉलेज है जहाँ पे थोड़ा सा बच्चा रुकता है या समझने में घबराने लग जाते हैं बहुत से बच्चे, जैसे मैथमेटिक्स है, स्टूडेंट्स दूर भागने लगते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत पेशेंस के साथ पढ़ाइए, एक चीज का एनालाइज करिए, तब जाके कोई दो नंबर्स में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना होता है। तो इस पेशेंस के साथ अगर आप पढ़ा रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट बहुत उम्दा सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट की डेप्थ इतनी है कि आपको एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बनाएगी, एक बड़ा साइंटिस्ट बनाएगी, एक बड़ा पॉलिटिकल लीडर, ग्रेट लीडर बनाएगी, एक ग्रेट टीचर बनाएगी। सो सच काइंड ऑफ नॉलेज that is not understandable by the students easily, but analyzed by you and presented in a very simple way, that is really you have the analytical skills. तो वहां बच्चे के अंदर और रुझान सब्जेक्ट के लिए पैदा हो जाता है। सिंथेसिस, ये मैं आपको बता भी चुकी, सिंथेसिस का मतलब है जॉइनिंग ऑल टुगेदर, joining knowledge segments all together. अब देखिए ये भी उसी तरीके की बात कह रहा है जो नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एप्लीकेशन एनालिसिस, ये इवैल्यूएशन है। This category of objective aims to develop in the learner the ability to make proper value judgment about what has been acquired by him in the form of knowledge, understanding, application, analysis, and synthesis. So it is the highest level in this arrangement, and it is the ability to judge the worth of a material against stated criteria. So it is evaluation. Okay. As a result of this domain, the learner is expected to take proper decision about the quantitative and qualitative value of particular सब्जेक्ट। नाउ सी दिस, ये मैंने एक कोन बनाया जिसको मैंने हायरार्की मैनर में, एक हायरार्की में उसको अरेंज किया है। नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, ये ब्लूम्स की ओरिजिनल टेक्सोनॉमी 1956 में ब्लूम्स ने दी थी। हर टीचर को ये आनी चाहिए, और इसके आने से, इसके जानने से हम अपनी टीचिंग को बहुत ही इफेक्टिव बना सकते हैं, क्योंकि हम कहीं का कभी शुरू कर दिया, कभी कहीं का शुरू कर दिया, इससे डिसइंटरेस्ट बच्चों में आता है। अगर एक सिस्टमैटिक वे से हम आगे बढ़ते हैं
तो हम अपनी क्लास को इफेक्टिव वे में आगे बढ़ा सकते हैं। ये आपके लिए एक प्रेजेंटेशन है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। अब देखिए, ये अफेक्टिव डोमेन है। अफेक्टिव डोमेन जैसे मैंने आपको बताया, देखिए इसमें एटीट्यूड, इमोशन, फीलिंग्स, इसकी बात कही गई। जैसे अभी हिंदी सब्जेक्ट की बात चल रही थी, तो उसको पढ़ने से, बहुत सी पोइम्स और बहुत से नॉलेज सेगमेंट, उसको स्टोरीज को पढ़ने से, बहुत से राइटिंग्स पढ़ने से हम लोग एकदम से थ्रिल्ड, यानी एकदम हमारे अंदर से एक ऐसा जज्बा पैदा होता है कि हम भी कुछ लिखें। वे सामाजिक इश्यूज जो हैं, जो सोशल इश्यूज हैं, हम भी उन पे कुछ लिखें। क्योंकि देखिए, इन्होंने प्रेमचंद ने कितना अच्छा लिखा है, माधवी वर्मा जी ने कितना अच्छा लिखा है, एंड वी कैन कोरिलेट आवर नॉलेज टू दैट पर्टिकुलर इशू एंड वी स्टार्ट राइटिंग। समटाइम इट हैपन कि हम खुद भी अपना लिखते हैं, टाइप करते हैं, छपवाते हैं अखबारों में, मैगजीन में। तो ये कब होता है? जब हमारे अंदर होल हार्टेडली उस सब्जेक्ट के लिए लव एंड अफेक्शन होता है। तो ये अगर पढ़ाने का अंदाज इतना अच्छा है कि बच्चा इन्वॉल्व है टीचिंग में, तो आप उस सब्जेक्ट के लिए एक अच्छा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पैदा कर सकते हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड स्टूडेंट में डेवलप कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी मुश्किल सब्जेक्ट हो, चाहे वो मैथमेटिक्स है, चाहे वो इंग्लिश है, और व्हाटएवर इट इज जिसमें बच्चे बहुत घबराते हैं, उसको भी हम अच्छा बना सकते हैं। अफेक्टिव डोमेन के भी 5 लेवल्स होते हैं। देखिए कौन कौन से हैं। रिसीविंग, अवेयरनेस, विलिंगनेस, कंट्रोल्ड, रिस्पॉन्डिंग, acquiescence in responding, willingness to respond, satisfaction in response। ठीक है, तो ये अफेक्टिव डोमेन है। अफेक्टिव डोमेन की हायरार्किकल वर्ड्स है जो यहाँ लिखे हुए हैं। वैल्यूइंग, एक्सेप्टेंस ऑफ अ वैल्यू, प्रेफरेंस फॉर अ वैल्यू, कमिटमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, conceptualization of a value, organization of a value system। हर सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ वैल्यूज डेवलप होती हैं। जैसे कॉमन कोर वैल्यूज क्या हैं? सिंसियरिटी, पंक्चुअलिटी, हार्ड वर्क, प्रॉपर एटीट्यूड, ये कोर वैल्यूज है। कोर का मतलब होता है कॉमन, सब में ये कॉमन है, हर सब्जेक्ट के लिए ये होना बहुत जरूरी है। लेकिन स्पेशल काइंड ऑफ वैल्यूज क्या होती हैं? जैसे पॉलिटिकल साइंस की मैडम है, अभी उन्होंने बताया, स्नेहलता जी ने, तो उन्होंने बताया कि वोटिंग प्रोसेस सीख जाता है। तो लव फॉर वेरियस डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, उसको वो वैल्यू उसमें समझ में आ जाती है, कितना हमें ईमानदारी से काम करना है और कितना हमको ऑनेस्टी यहाँ पे शो करनी है, जिससे हमारा सिस्टम, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो गड़बड़ाए ना। So the student understand about these sensitivities of this particular subject। इसी तरीके से preference for a value, commitment, organization, conceptualization of a value, organization of a value system, जो एक holistic development की बात NEP 2020 में चल रही है, वो ये फाइनली इसी फॉर्म में कि अगर वैल्यू सिस्टम सही डेवलप हो गया तो स्टूडेंट खुद ब खुद उसके अंदर नॉलेज भी आ जाएगी और उसके अंदर एप्लीकेशन भी आ जाएगी और वो प्रॉपर स्किल्स भी उसके अंदर डेवलप हो जाएंगे, जिन स्किल्स के थ्रू वो अर्न भी कर सकता है और अपनी सब्जेक्ट की यूटिलिटी, अपने सब्जेक्ट के यूटिलाइजेशन को भी इस्तेमाल कर सकता है, उसकी यूटिलिटी को भी समझ सकता है। Characteristics by a value or value complex, generalized set and characterization। Then we come to receiving। ये हो चुका है, इसको बार बार नहीं बोलेंगे। साइकोमोटर डोमेन पे आ जाते हैं। साइकोमोटर डोमेन का मतलब होता है कि जो आपके हैंड स्किल्स हैं, आपके बिहेवियर में अगर लग रहा है कि हाँ ये परफेक्ट डॉक्टर है, भाई इसने कितने अच्छे से देखा मरीज को, कितनी प्यार से उससे पूछा, उसको हेल्प भी किया, उसको लेटा भी दिया,
तो ये क्या है, ये उसके अंदर एक स्किल्स है जो एक डॉक्टर में होनी चाहिए। तो इमिटेशन, किसी का, टीचर को इमिटेट करते हैं स्टूडेंट्स। कैसे इमिटेट करते हैं कि आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो उनके लिए एक बहुत बड़ी शब्दकोश तैयार कर देता है। तो इसलिए टीचर की भाषा, टीचर का उच्चारण, टीचर का बोलने का अंदाज, ये सब इम्प्रेस करता है बच्चों को, और हमारे लर्नर हमसे ही सीखते हैं। ये इनडायरेक्ट फॉर्म में होता है, नॉट इन द डायरेक्ट फॉर्म, बट इट इज इन द इनडायरेक्ट फॉर्म। इम्पल्शन, ओवर रिपीटिशन, मैनिपुलेशन, फॉलोइंग डायरेक्शन, सिलेक्शन एंड फिक्सेशन, ये हमारे साइकोमोटर डोमेन के कंपोनेंट्स होते हैं। Precision, reproduction, control, articulation, sequence, harmony, naturalization, automatism, interiorization, ये सिर्फ अलग अलग करके हमने इसको बताया है, but the thing is same as I have verbally explained to you. ये देखिए, ये ब्लूम्स की रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी है। इसमें थोड़ा सा फर्क कर दिया है। क्या फर्क कर दिया है कि इन्होंने जो वर्ड्स ब्लूम ने दिए थे, उन वर्ड्स को इन्होंने रिप्लेस किया है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे रिप्लेस किया है। रिमेम्बरिंग, रिकॉग्नाइजिंग, रिकॉलिंग, क्वेश्चन क्यूज, यहाँ चेंज किया है। अंडरस्टैंडिंग में हमने एक्स्ट्रापोलेशन लिया था इंटरप्रिटेशन के बाद। ये वर्ब फॉर्म में एक तो क्लासिफाई, समराइज, क्लासिफिकेशन नहीं है, इंटरप्रिटेशन नहीं है, एक्स्ट्रापोलेशन नहीं है, बल्कि इस फॉर्म में इंटरप्रेट, एग्जाम्पलीफाई, क्लासिफाई, समराइज, इन्फेरेंट, कंपेयर, एक्सप्लेन, अप्लाइंग, एग्जीक्यूटिंग, इम्प्लीमेंटिंग, फिर एनालाइजिंग है, इसमें डिफरेंशिएटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एट्रीब्यूटिंग, क्वेश्चन क्यूज, कंपेयर, एट्रीब्यूट, ऑर्गेनाइज, डिकंस्ट्रक्ट, चेकिंग, क्रिटिक, क्रिएटिंग, जनरेटिंग, प्लानिंग, प्रोड्यूसिंग। देखिए वो जो आपको हमने पहले बनाया था, ये कौन हो, इसमें आप कंपेयर कर लीजिए। ये दोनों जो हैं, इसमें जो वो कुछ वर्ड्स का रिप्लेसमेंट कर दिया गया है, कुछ वर्ड्स का रिप्लेसमेंट हुआ है। जैसे रिमेम्बर नहीं था उसमें, आप देखिए उस ब्लूम्स के टेक्सोनॉमी में रिमेम्बर नहीं था, लेकिन जो हमारी रिवाइज्ड है टेक्सोनॉमी उसमें है। हम वहाँ एप्लीकेशन कह रहे थे, यहाँ अप्लाई कह रहे हैं। वहाँ एनालाइज, वहाँ एनालिसिस कह रहे थे, यहाँ एनालाइज कह रहे हैं। तो नाउन को, कुछ एडवर्ब को इन्होंने चेंज कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ वर्ब ओनली। आ जाइए, आइए आइए आइए। इम्प्लीकेशन, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का जो इम्प्लीकेशन मैंने बीच बीच में आपको बहुत बताया है, और आप भी कोशिश करेंगे। अब उसके बाद देखिए ये, थैंक यू। नाउ यू प्लीज टेक आउट योर पेपर एंड पेन, और ऑब्जेक्टिव आप अपनी किसी भी टॉपिक पे बनाइए। कोई भी जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप उसमें एक कॉग्निटिव, एक अफेक्टिव, एक साइकोमोटर, 3 ऑब्जेक्टिव बनाइए। फिर हम इस एक्सरसाइज को भी आपसे पूछते हैं। जी चलिए चलिए, जो आप सब्जेक्ट पढ़ाते हैं अपना, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड एक कॉग्निटिव, एक अफेक्टिव और एक साइकोमोटर, 3 ऑब्जेक्टिव सब स्टूडेंट्स बनाएं। मैं एक एक करके, 5 मिनट का टाइम है। यू हैव 5 मिनट्स एंड यू हैव टू राइट 3 ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू 3 separate domains of Bloom's taxonomy. That is, one is cognitive, affective and psychomotor. Thank you, Sakshi ji. Thank you.
आप पहले स्क्रीन पे आइए, प्लीज ओपन योर वीडियोस। फर्स्ट कम ऑन स्क्रीन, वीडियो ओपन करिए अपने सभी लोग। यस, रजनी रावत जी, आपको समझ में आई बात मेरी? यस मैम। हाँ, यस प्लीज राइट, जल्दी से लिखिए। 5 minutes, आफ्टर 5 minutes I will ask to you what you have written. स्नेहलता जी अपना वीडियो ओपन कीजिए, मयंक जी, दीपाली जी। ऑब्जेक्टिव ऑफ इफेक्टिव कॉग्निटिव पहले लिखिए, फिर अफेक्टिव लिखिए, फिर साइकोमोटर लिखिए। कॉग्निटिव में नॉलेज लिखिए कि आप क्या ज्ञान देंगी, अफेक्टिव में उससे रिलेटेड कौन सी वैल्यू या इंटरेस्ट आप डेवलप करेंगी, और साइकोमोटर में आप कौन सी स्किल डेवलप करेंगे। ओके मैम, थैंक यू। सोनू राज जी प्लीज ओपन योर वीडियो। यस यस मैम, कर दिया। मैम हम जूलॉजी सब्जेक्ट से हैं, अगर हाँ, जिस भी सब्जेक्ट से। तो हम सपोज हमारे पास एक एनिमल है, तो हम पहला कॉग्निटिव के बेस पर ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं टू आइडेंटिफाई द एनिमल। मैं पूछती एनिमल हूँ को आपसे, अभी पूछूंगी, अभी Yes, पहले ma'am. बना लीजिए, Yes. अभी आप बना लीजिए। अभी आई विल आस्क यू, वेट फॉर 3 or 4 minutes, I will start this exercise, what you have understand from my side. Please do it. Ma'am, please repeat the question. Cognitive, which objective is cognitive and? Affective and psychomotor. Okay, okay. Yes. Okay, जितेंद्र जी प्लीज बताइए। यस मैम। बताइए जितेंद्र। मैम हमने लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट को जो बहुत सारे एनिमल्स दिखाए थे, तो आज हमने ऑब्जेक्टिव पहला क्रिएट किया है टू आइडेंटिफाई द एनिमल बेस्ड ऑन द प्रीवियस लेक्चर। तो वो ये कौन स्टूडेंट सा डोमेन है ये? तो मैम ये पहला कॉग्निटिव डोमेन, बच्चा पहले लेक्चर को रिमाइंड करेगा और वो एनिमल को आइडेंटिफाई कर पाएगा। करेक्ट, वेरी करेक्ट। और बताइए। तो मैम दूसरा डोमेन है अफेक्टिव डोमेन। तो अफेक्टिव डोमेन में रखा है हमने दूसरा, हमारा ऑब्जेक्टिव सेकंड है टू स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल। तो बच्चा वहां पर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेगा, तो इसके बारे में बता सकता है। नहीं, ड्रॉ नहीं करेगा। जो सेकंड होता है आपका अफेक्टिव होता है ना, अफेक्टिव का मतलब है आपका हार्ट, उसमें हार्ट में मैंने क्या बताया आपको, इमोशंस, लव, अफेक्शन, इंटरेस्ट। तो आप जब उसको वो दिखा रहे हैं, स्पेसिमेंस दिखा रहे हैं ना आप उसको एनिमल के, यस मैम, यस मैम। उस स्पेसिमेन को देख के उसके अंदर लव फॉर वाइल्ड लाइफ, लव फॉर वाइल्ड लाइफ, इंटरेस्ट टू नो मोर अबाउट द एनिमल्स, यस मैम, इट इज इंटरेस्ट मोर टू नो इफेक्टिव। हाउ दे आर वर्किंग इन आवर इकोलॉजिकल सिस्टम। कहीं ना कहीं उनका भी प्लेस होगा, कंजर्वेशन, चाहे वो प्रोड्यूसर्स हो चाहे वो कंजम्पशन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उनका भी प्लेस होगा ना। सो दिस इज अ काइंड ऑफ वैल्यूज दैट इज लव, अफेक्शन, इंटरेस्ट। तो वो जब आप उनको आइडेंटिफाई कराएंगे तो उस पर्टिकुलर स्पेसिमेन से उसके अंदर ये भावना जागृत होगी कि ये एनिमल जो है वो कहाँ पाया जाता है, ये एनिमल मैंने किसी तस्वीर में देखा था या नहीं देखा था, एंड हाउ टू प्रिजर्व एंड हाउ टू डू समथिंग न्यू विद दिस काइंड ऑफ एनिमल। ये चीजें जो जाती है जिसमें एंथुजियाज्म इन्वॉल्व हो जाता है बच्चे का पढ़ने के बाद, वो इफेक्टिव डोमेन है। ठीक है, तो टीचिंग में उसको इन्वॉल्व कर लेना,
टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उसको पार्टिसिपेट करना, उसको एक हिस्सेदारी देना, ये अफेक्टिव डोमेन है। ठीक है, अब जो आपने थर्ड बताया कि वो ड्रॉ करेगा, जो ड्रॉ करने का आप स्केच बता रहे हैं ना, वो एनिमल का ड्रॉ करेगा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करेगा, तो ये थर्ड होता है, दैट इज स्किल ओरिएंटेशन साइको, ठीक है, साइकोमोटर डोमेन। तो आपने जो चैप्टर पढ़ाया उस चैप्टर में एक नॉलेज का आपने दिया कि वो एनिमल किंगडम के बारे में जानेगा। अफेक्टिव डोमेन क्या हुआ कि वो लव फॉर एनिमल and a particular kind of specific kind of interest for these animals that you shown there, and the third one is to draw the sketch, वो skills का पार्ट है। ठीक है, चलिए कीर्ति कुमारी जी, कीर्ति कुमारी जी, कीर्ति कुमारी जी। यस मैम। यस प्लीज, आपका सब्जेक्ट? मैम मेरा सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर। लिटरेचर, हिंदी? यस। हिंदी लिटरेचर जी, बताइए आप कैसे बनाएंगी? आपके क्या ऑब्जेक्टिव होंगे? मान लीजिए आप कोई पोइम पढ़ाने जा रही हैं अपने क्लासरूम में, है ना, तो आपके क्या ऑब्जेक्टिव कॉग्निटिव बनेगा? कोई भी एक पोइम ले लीजिए आपको जो अच्छी लगती हो। कोई भी एक पोइम। मैम यस मैम, जैसे मैं इधर ही पढ़ाई थी, निराला की एक पोएम है तोड़ती पत्थर, प्रगतिशील काव्यधारा से संबंधित है। ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। जी ये है मैं तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर। जी जी हाँ है जी। बताइए तो इसका क्या कॉग्निटिव होगा? कॉग्निटिव डोमेन का बताइए क्वेश्चन। कॉग्निटिव डोमेन का इसमें क्या पार्ट होगा? कॉग्निटिव डोमेन का इसमें पार्ट क्या होगा? मैम जैसे कॉग्निटिव का मतलब हुआ कि जो कविता है उस कविता को आपने उनको नॉलेज दी कि ये हमारी जो कविता है इसमें ये बताया गया है कि वो एक मेहनत कर रही है, एक लेबर क्लास की एक महिला है जो पत्थर तोड़ती है, और उसने बताया कि इंसानों से ज्यादा जानवरों पे लोग तवज्जो दे रहे हैं, उनको तो खाने को दे रहे हैं, हम नहीं इतना कर पा रहे हैं। यही तो सब है जहां तक मुझे याद है। आप बताइए कुछ और अगर नया बताएं तो। कीर्ति जी बोलिए। मैम मैं बताऊं पोएट्री के वो। माय नेम इज आलिया तजीन। आलिया तजीन बताइए। मैम अगर पोएट्री हम पढ़ाने जा रहे हैं, से फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश की पोएट्री का एग्जांपल देना चाहूंगी कि सबसे पहले जब हमने पोएम पढ़ाया तो कॉग्निटिव लेवल पे ये रख सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो है दे विल बी अंडरस्टैंडिंग द सरफेस लेवल मीनिंग ऑफ द पोएम। सबसे पहले उन्हें मीनिंग समझ में आएगा, दैट वुड बी कॉग्निटिव लेवल। अगर उसको सेकेंड लेवल पे लाते हैं तो वहां पर ये कहा जा सकता है कि दे विल बी एबल टू अप्रिशिएट द एस्थेटिक ब्यूटी ऑफ पोएम, जो उसमें जो भी नेचर के बारे में, जिस चीज के बारे में भी जिक्र किया गया है उसको वो समझ सकेंगे। और लास्ट अगर हम इसे एप्लीकेशन लेवल पे देखा जाए तो दे विल बी एबल टू यूज द न्यूली लर्न वर्ड्स, और इसके अलावा जो भी उन्होंने लिटरेरी एलिमेंट्स सीखे हैं उसको वो यूज भी कर सकेंगे और आइडेंटिफाई भी कर सकेंगे। तो ये एप्लीकेशन थर्ड लेवल पे हम इसको कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई मैसेज अगर कविता देती है, कोई भी लिटरेचर का पार्ट ऑफ सेगमेंट ऑफ लिटरेचर कुछ भी अगर मैसेज देता है तो हम वो मैसेज भी हम दे सकते हैं, जो कि हमारी एप्लीकेशन का पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो सही बताया तजीन आपने, आलिया तजीन। यस अच्छा, और बताइए। गुड आफ्टरनून मैम। डॉक्टर यस गुड आफ्टरनून Ma'am, I'm Prachi Singh from Baikunthi Devi Kanya Mahavidyalaya, Agra. Ma'am, I'm assistant professor of English. Here, I would like to add something. Suppose that if I'm going to teach a poem by Robert Frost, Stopping by Woods on a Snowy Evening. First of all, I would like to tell the students
that it is a nature poem. What is the genre of the poem? Then I will explain, sorry, on the cognitive level, I would like to tell them what is the genre of the poem. And secondly, in the effective level, I am going to explain them that what are the poetic qualities of the poem. And at last, as the 4 lines of the poems are, the woods are lovely, dark and deep, and the woods are lovely, dark and deep, and before. I have promises to keep. Sorry, Go before my. I'm not able to recall. कोई बात नहीं, Yes, कोई बात नहीं. the woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. And as Harbans Rai Bachchan also translated this poem into Hindi, that गहन सहन मनमोहक बनतरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे खुद से याद मुझे आ जाते हैं, किंतु अभी कहाँ आराम बदा ये निह निमंत्रण छलना है, किंतु मुझे सोने से पहले मीलों आगे चलना है. I would like to relate the Hindi and the English version of this poem. Then at last, I would like to teach them that how they have to implement these things into their lives, and how they have to behave, how what is their what are their goals, what should they do in their lives. एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा बताया प्राची जी, बढ़िया, बहुत अच्छा. हाँ, लैंग्वेज मैम मैं डॉक्टर अमरदीप. अमरदीप जी बताइए. जी एक्चुअली मैम मैं जो है जैसे न्यूटन्स की थर्ड लॉ की अगर हम बात करते हैं या फिर वर्क की बात करते हैं हम, तो फर्स्ट में जो फॉर्मेटिव की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे हमारा 2 और 3, 4 ईयर्स का जो चाइल्ड होता है, उसको भी हम न्यूटन्स के लॉ बता सकते हैं, समझा सकते हैं. कैसे? अगर हम उसके हाथ में एक बैट दे दे और एक बॉल दे दे, उसको पता है कि ये बॉल हिट करेंगे तो ये क्या करेगी, ये थोड़ी दूरी पर ट्रेवल करेगी. एक तो ये हुआ मैम. दूसरा, वर्क का हम ऐसे कह सकते हैं कि जब हम किसी बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाता है. दूसरा ये हुआ मैम. और तीसरा, इसी का एग्जाम्पल जो है, एक इलास्टिसिटी जैसे हम चैप्टर पढ़ते हैं, अगर हम उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स लगा देते हैं तो उसका शेप और साइज बदल जाता है. फॉर एग्जाम्पल रबर. तो ये हम बच्चों को बता सकते हैं कि ये कुछ एग्जाम्पल्स है, इससे कुछ थोड़ा बहुत समझा सकते हैं बच्चों को कि ये आपके पास बॉल है. छोटे बच्चों को भी और मतलब जो है कुछ बड़े जो स्टूडेंट्स हो गए उनको भी बता सकते हैं कुछ इस तरह की चीजें. तो ये फॉर्मेटिव नॉलेज में और इफेक्टिव नॉलेज दोनों का पार्ट है. फिर उसके कुछ मैम उसका कुछ स्ट्रक्चर, जैसे रबर कैसे काम करती है, और जो हमारे टेबल्स और चेयर्स जब हम उसको फोर्स लगा देते हैं वो कैसे जो एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्लेसमेंट हो जाते हैं. तो कुछ इस तरह से बता सकते हैं बच्चों को. बिल्कुल बिल्कुल. तो इसमें जो आपके एप्लीकेशन पार्ट है वो भी बताइए. हाँ मैम, एप्लीकेशन पार्ट में जैसे अभी मैंने आपको रबर का एग्जांपल दिया है इलास्टिसिटी में, तो उसका इलास्टिसिटी का और बहुत जगह एप्लीकेशन है. जैसे एक मिनट जस्ट. इलास्टिसिटी जैसे मैम जैसे पुल्स वगैरह में जो ये वो लगाते हैं, पुल्स वगैरह में जो हम लोहे के जो बंडल लगाते हैं, तो पूरा इलास्टिसिटी पे ही बेस है. ठीक है, अच्छा बताया आपने, आप लोगों की समझ में आया. सुनील बेसरा, सुनील जी, डॉक्टर सुनील जी. Yes, ma'am. यस. Sunil Mehta from Santal Prakana College, दुमका, झारखंड. मैम मेरा जो कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. मतलब इस धरती पर जितने भी जीव हैं उन जीवों को जो बांटना है वो 5 किंगडम में बांटा गया, और बांटने का आधार क्या है वो बताएंगे. जैसे उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उनका न्यूट्रिशन कैसे है, उनकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है, उसके आधार पर बांटा जाता है 5 किंगडम में. इसमें से एक किंगडम हो गया मोनेरा, जिसमें से बैक्टीरिया सब आएंगे, फिर प्रोटिस्टा आएगा, फिर प्लांटी आएंगे, फिर फंजाई आएगा, फिर एनिमेलिया आएगा. क्योंकि मैम हम जूलॉजी से हैं, तो जितने भी एनिमल्स हैं आइदर वो इनवर्टिब्रेट होते हैं या वर्टिब्रेट. करने का मतलब या तो रीढ़धारी वाले जीव होते हैं या बिना रीढ़धारी वाले जीव होते हैं, तो उसको इजीली हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं.
ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा बताया आपने, बढ़िया, बहुत अच्छा। पूनम जी बताइए। नमस्कार मैम। मेरा टॉपिक रहेगा सेल बायोलॉजी का। तो इसमें कॉग्निटिव में बेसिकली बच्चे समझेंगे कि सेल क्या होता है, उसके अंदर कैसे कंपोनेंट्स होते हैं, क्या ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। उसके अलावा वो समझेंगे कि सेल कैसे डिवाइड करता है, कैसे ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस करता है। उसके बाद उससे कौन कौन सी सेलुलर डिजीजेस होती हैं हमें, ये सारे कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव के अंडर आएंगे। इफेक्टिव में मैम वो इन सेल का रोल क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो समझेंगे। उसके अलावा वो समझे जो रिसेंट रिसर्चेस हो रही हैं सेल बायोलॉजी में, स्टेम सेल, इन सब के बारे में समझेंगे। और अगर हम साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो लैब में वो स्लाइड्स प्रिपेयर कर सकते हैं। माइटोसिस की स्लाइड प्रिपेयर करी जाती है ऑनियन टिप से, उसको वो देखेंगे तो समझेंगे कि कैसे सेल डिवीजन होता है। ये अच्छा बताया आपने, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, तीनों ही डोमेन आपने अपनी लेसन में कवर किए। वेरी गुड, थैंक यू। राजेश जी आप बताइए, डॉक्टर राजेश जी। डॉक्टर राजेश जी बताइए, आपका सब्जेक्ट क्या है? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। डाउरी प्रिवेंशन एक्ट 1961 में बच्चों को बताऊंगा। ये मेरा कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव है। और अफेक्टिव में रहेगा तो ये जो हमें दहेज के बारे में बताएंगे, दहेज एक्ट के बारे में, ये सोसाइटी के लिए, स्टूडेंट के लिए कैसे यूजफुल है ये बताएंगे। और साइकोमोटर में रिफॉर्म इन सोसाइटी, इस एक्ट को जानने के बाद बच्चे और समाज में इसको यूज करेंगे तो समाज में कैसे इसके प्रति जागरूकता आएगी, रिफॉर्म होगा। ये साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव रहेगा मेरा। जी बढ़िया, बहुत अच्छा। लगभग चलिए, गुड आफ्टरनून मैम। हाँ बताइए, हाँ जी बताइए मैम। मैं पॉलिटिकल साइंस में, अगर मैं पॉलिटिकल थियरी की बात करूंगी तो उसमें अगर इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम कॉग्निटिव में ये ड्रॉ करेंगे कि ये सारी चीजें क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशंस क्या है और किस तरीके से ये बेस ड्रॉ करता है पॉलिटिकल साइंस में स्टेट को एक गुड आइडियल स्टेट और आइडियल सिटीजन बनाने के लिए। फिर अगर सेकंड ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि किस तरीके से ये सारी चीजें कितना जरूरी है, कितना इंश्योर करती हैं किसी भी सिटीजन को और किसी भी स्टेट को अच्छा बनाने के लिए। देन थर्ड पे आएंगे तो हम इसे अप्लाई कर सकते हैं कि कोई भी इंसान किसी के साथ इनजस्टिस ना हो, उसकी इक्वालिटी, लिबर्टी का ध्यान दे और कितना अच्छा वो सिटीजन बन सकता है अपने स्टेट के लिए। तो ये सारी चीजें अपने बिहेवियर में वो दिखा सकता है। बहुत अच्छा बताया, बहुत बढ़िया। तो आपकी बात आप लोगों की समझ में आई, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम द साइड ऑफ योर पार्टिसिपेंट्स? कोई सवाल है? लेकिन बात तो आपकी समझ में आ गई होगी, कैसे कॉग्निटिव, कैसे अफेक्टिव, कैसे साइकोमोटर, तीन तरीके से हम तीनों डोमेन्स में कैसे ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। ठीक है, सो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन फ्रॉम द साइड ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, प्लीज आस्क। पूछिए। नो मैम, थैंक यू। रीता सिंह जी, नो क्वेश्चन मैम। रीता सिंह जी पूछना चाहते हैं? नो मैम। Ma'am, you explained very well. Doubts are left. Thank you so much. Thank you ma'am. Thank you, ma'am. Thank you ma'am. Thank you. Wonderful lecture, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.